We're starting with the chapter of ray optics. We have done completely wave optics. Okay, we'll be discussing ray optics. This one. In this, there are three parts which I'll be discussing. First is reflection of light. Second will be what, sir? Refraction of light. Refraction of light. And third part is what, sir? Optical instrument. So 1 week will be based on reflection fully. Generally, it can be done within 2 days only, but I am taking 1 full week. बराबर है 4 to 5 lectures. Hello. Yes, sir. Refraction will be 1 week. And optical instruments will also be. बराबर है ना? Yes, sir. So within 3 weeks, उसके अंदर ही अंदर आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा. Since that fluids will also get over from Mustafa sir. Getting it ना? Yes, sir. तो फिर मैं आपको अपना टाइम टेबल भेज दूंगा. जेई वालों का टाइम टेबल मैंने भेजा नहीं है. नीट वालों का आई हैव सेंड. जेई वालों का टाइम टेबल आई हैव सेंड द नवंबर टाइम टेबल. Okay. So today we'll be starting with the concept of reflection of light. Before doing that, we'll do some general concepts of ray optics. Hello, are you all there now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll be discussing some general concepts of ray optics. So please note, if you don't know, if you've not seen the video, when I'm doing the general concepts, there are some 10 to 12 concepts, and then we'll start with the reflection of light. Proof and everything, I'm not doing anything. I'll be just giving you the standard result because we'll be more interested in solving the numericals. सबसे पहला हम बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की. Normal incidence means, hello, this is the ray of light going through a surface. Suppose this is, so how much is, can anyone tell me normal incidence matlab how much is the angle of incidence? 90. 90. Angle of incidence 0. Angle of incidence is 0 because it is made with the normal, na? Yes, sir. Made on the normal. So angle of incidence is also 0. And angle of reflection is also 0. And angle of refraction is also 0. 0. बराबर है क्या? Yes. इसको याद रखना. इसको कहते हैं normal incidence on the surface. This is the surface of refracting medium. Similarly, if this is the surface, and अगर यहाँ से एक रे ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो अगर ये normal है, तो कोई बता सकता है how much is the angle of incidence? 90. 90. 90. Angle of incidence is also 90. Okay. और यार इस इंसिडेंस को कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस. हेलो, क्या बोलते हैं बेटा इसको? ग्रेजिंग इंसिडेंस. Sir. ओके, हाँ बेटा. So what have you written just beside incident angle of incidence? This one I is 90. This is the normal incidence. हाँ, I Beside- is 0, R is 0, R dash is 0, I is 0, Okay. R is 0. हाँ, ठीक है. Now next one. Next thing. We'll be discussing real object
virtual object and vice versa. Real object, virtual object, and vice versa. Suppose this is a mirror. We are taking plane mirrors over here today. Hello. Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लोग बोलेंगे, ये लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपको याद है तो। पूरा वीडियो देखा है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. sir. सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, आई एम नॉट डूइंग मिरर्स राइट नाउ, बस ये एक केस है उसका। सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा, रे ऑफ लाइट गोज हियर, तो मिरर पे जब वो पड़ेगा तो इट विल अंडरगो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये मुड़ जाएगा ऐसे। Yes, sir. सपोज ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा? थीटा, बिकॉज आई विल बिकम इक्वल टू आर ना। Yes, sir. सिमिलर थिंग हैपेंस ओवर हियर आल्सो। सपोज ये भी थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा। Can I see these rays of light which are going away will be meeting behind the mirror? Yes, sir. Yes, sir. Always remember, जो भी चीज behind the mirror मिलती है Virtual. वो चीज क्या होती है? Virtual. Virtual. बन जाएगी। हेलो। Yes, sir. वर्चुअल मतलब आप यहाँ पर अगर स्क्रीन रखेंगे तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। ओके, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इट कैन बी सीन, ओके, बट इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। क्लियर है? Yes. कि हमारा दिमाग हमको वर्चुअल चीजें दिखाता है। आप सपने देखते हो ना? कुछ लोग दिन में देखते हैं, कुछ लोग रात में देखते हैं, बट देखते हो ना, दैट इज वर्चुअल इमेज। बराबर है क्या? Yes, sir. मैं बोलूं उसको स्क्रीन पे उतारना है आपको, तो आप नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. That is the whole concept. So this is extended forward, this is virtual image. Okay, and the object is what, sir? Real. Real object, virtual image. I am going very slow because it is first lecture. Similarly, अगर मैं बात करूं okay, virtual object is, suppose rays are coming this way from infinity, the rays are coming, what will happen? Reflect. They will reflect now by some angle theta. Yes. ये क्या बना? Focus. Real image. Image. Real image. और ऑब्जेक्ट जो है वो Virtual. वर्चुअल है। हेलो। Yes, sir. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. नाउ याद रखना, वर्चुअल images or virtual objects cannot be taken on the screen. It can be seen by the eye because हमारा दिमाग वो क्षमता रखता है, वो कैपेबिलिटी रखता है ताकि हम वर्चुअल इमेजेस को देख पाए, but we cannot put virtual images on the screen. हेलो, getting enough? बाबा समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन कितनी पॉइंट्स हो गई? 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरी पॉइंट की तरफ आते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सर? Sign convention. Sign convention. जो लोग नहीं बैठते हैं लेक्चर को, उन लोगों को सबसे पहले ये सुनना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। ओके, क्या? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as Positive. positive. Okay, distances are always measured From optical center.
फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और फ्रॉम द From the pole. Pole. ये सब बताऊंगा, पोल क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, आप टेंशन मत लो उसको. ओके. डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ incident ray are taken as, Positive. and distances opposite to the direction of incident ray are Negative. negative. हेलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर है बेटा? सपोज यहां पर एक मिरर है. इस मिरर को कौन सा मिरर बोला करता है? Concave. Concave. कॉनकेव मिरर है, अंदर की तरफ झुका हुआ है ना, कॉनकेव. ये हम लोग करेंगे कल के लेक्चर में स्पेरिकल मिरर्स, बट आज सिर्फ प्लेन मिरर सीखना है. आई एम गोइंग वेरी स्लो. हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं है, कुछ फास्ट नहीं जाना है. वीडियो में डबल बार इसको रिपीट करो, बिकॉज इसमें क्या है, थोड़ा एक बार आ जाएगा ना रे ऑप्टिक्स तो आ ही जाएगा. फिर लास्ट चैप्टर है, इसको खराब मत करो. ओके. थोड़ा लेट खत्म होगा ना यार, 10 दिन पोर्शन, खराब मत करो किसी को भी. कहेंगे ना? Yes, sir. यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया. ओके. यहाँ पर हमने बेटा क्या रखा, इसका क्या रखा? Object. इमेज सपोज बन रहा है इधर. सपोज इमेज यहाँ पर बन रहा है, पीछे भी बन सकता है, आगे भी बन सकता है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे. ये हमारा पोल है. मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है? पोल. अच्छा, रे कहां से आने वाली है? रे इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ना. हेलो. Object. Yes, sir. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. दिस इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं. इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? V. पी. अब आपसे अगर मैं पूछूं कि यू पॉजिटिव है कि वी पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. क्या करना है? यू स्टैंड वेयर एट द At the pole. पोल. आप पोल पर खड़े रह जाओ. अच्छा, आप ओ की तरफ देखेंगे तो इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? Opposite. तो जब आपने ओ की तरफ देखा तो आपने नेगेटिव डायरेक्शन में नजर डोलाई. हेलो. Yes. तो यू ओवर हियर विल बी टेकन एज व्हाट सर? Negative. नेगेटिव. अच्छा, आपने इमेज को देखा तो इमेज इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे बेटा. Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पर v will be taken as what sir? Positive. Positive. So this is how we solve the concept of साइन कन्वेंशन. समझ में आ रहा है? Yes, sir. sir. आप पोल या ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाओ. इंसिडेंट रे का जो भी डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लो. अभी ऑब्जेक्ट को देखो और इमेज को देखो, तो आपको पता लगेगा कौन सा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, कौन सा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव है एंड कौन सा नेगेटिव है. और चर्चा हम लोग आगे बढ़कर करेंगे. अंडरस्टूड? दिस इज द बेसिक आइडिया. हेलो. Yes, sir. हेलो. समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ. ओके. जो भी चीज मिरर के सामने बनती है उसको बोलते हैं रियल. हेलो. जो भी चीज यहाँ पर रहेंगी ना इस एरिया में, हेलो, उसको बोलेंगे रियल. और जो भी चीज मिरर के पीछे रहेगी वो क्या बनेगी बेटा? Virtual. वर्चुअल. हेलो. हेलो. यस और नो? Yes, sir. थियरी पढ़ पढ़ के आप पागल हो जाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू द होल फिल्टर ऑफ द होल चैप्टर, जो काम की चीज है. करेंगे ना? Yes, sir. जो आगे बनेगा रियल रहेगा, जो पीछे बनेगा वर्चुअल रहेगा. गेटिंग इट? व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. चलो, ये हो गया थर्ड स्टेप. अब बताते हैं फोर्थ स्टेप. Sir, the meeting has been recorded, right? या Okay. ठीक है. ध्यान दो इधर. सपोज फोर्थ स्टेप की बात करते हैं. फाइनल इमेज कोइंसाइडिंग विद ऑब्जेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है. पंच लाइन्स याद रखो. स्टार्ट में थोड़ा मेहनत करो 2-3 दिन,
पूरा रे ऑप्टिक्स एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। चलो मैं अगर आपसे कहूं कि मिरर ये है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, हेलो, Yes, sir. तो इमेज का क्या होगा? हेलो, रे ऑफ लाइट पलट कर वापस आ जाएगी अलोंग द नॉर्मल। Yes. अरे बाबा, यस और नो? Yes, sir. ऐसे जाएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी रे ऑफ लाइट। तो व्हेन इट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड कॉन्सेप्ट, ये कौन सा मिरर है? Concave. कॉनकेव मिरर, सही है क्या? अच्छा, Yes. इसका है ना, इस मिरर का ऑप्टिकल सेंटर होता है, क्या होता है? ऑप्टिकल Center. Center. क्या होता है कल मैं बताऊंगा। ऑप्टिकल सेंटर मतलब अगर मैं इसका एक सर्कल कंप्लीट करूं ना, हेलो, Yes, sir. अगर मैं Yes, इसका एक sir. स्पेयर कंप्लीट करूं तो उसका जो सेंटर रहेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? Optical. ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रख दूं और ऐसे पास कराऊं, तो इट विल गो, इट विल कम बैक, बिकॉज सेंटर से circumference पे anything is perpendicular only ना, it will be radially outwards and it will be reflected radially inwards। बराबर है क्या? Yes, sir. Yes. ये ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत काम की चीज। अच्छा, इसमें आई कितना था? 0। Zero. इसमें भी आई कितना है? Zero. 0। अच्छा, सिमिलरली और एक मिरर आएगा, ये कौन सा मिरर है? Convex mirror. सपोज रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है रेडियली, और अगर इस लाइन को मिलाने जाएगी तो वही सेंटर पे जाके मिलेगा डॉटेड, कैन आई से विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अगेन। Yes, sir. इसको भी बोलेंगे आई कितना रहेगा? इसका 0 ही रहेगा। हेलो, Yes, sir. थोड़ा सी तो वीडियो देखना ही पड़ेगा ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट भाई? Yes, sir. Yes. हाँ। एक और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो सपोज रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और एक लेंस यहाँ पर रखा है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। if the rays are coming from infinity, they will meet where? At the focus. F1. Hello, Yes, sir. याद रखना, when the rays are coming from infinity, when the parallel rays or the para-axial rays are coming from infinity, ये हम लोग लेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आपको याद होना चाहिए। ओके भाई, गेटिंग है ना? Yes, sir. Yes, sir. 6 पॉइंट, विजुअल एंगल। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, आपकी आंखें यहां पर है, यानी से ये ऑब्जेक्ट इतना एंगल बना रहा है, Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट है, इतना एंगल बना रहा है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? विजुअल एंगल। सही है? Yes, sir. सपोज यही ऑब्जेक्ट को मैं पीछे लेकर आ जाऊं, इधर लेकर आ जाऊं, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दैट, इसको इधर लेकर आ। अब मुझे आप एक बात बताओ, विजुअल एंगल के साथ क्या होगा? घट Decrease. गया? सही है क्या? Yes, sir. हेलो, इसका मतलब जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है वैसे विजुअल एंगल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कम होते हैं. कम हो कम हो जाता है. जाएगा, एंड द apparent size of the object will also decrease. Real size is going to remain the same. चांद हमारे दूर है ना बहुत, हेलो, Yes, sir. moon is very far away, sun is very far away, therefore the visual angle which is subtended at the eyes is very 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 Small. Small. and the apparent size of the sun is also seen very very small. 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 ओके, तो जितना विजुअल एंगल बड़ा रहेगा उतना ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, जितना, और जैसे हम नजदीक आएंगे वैसे
विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा, जैसे हम दूर जाएंगे ऐसे विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? ओके. So apparent size will also increase or decrease according to the visual angle. Real size तो same ही रहेगा, apparent size will change. Okay, not wasting time, I'll be starting with the concept of, what concept are we doing today? बोलो भाई. Reflection. Like वीडियो देखेंगे ना तो एकदम पक्का हो जाएगा, नहीं देखेंगे तो भी आ जाएगा, बट जनरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, पहला क्या था इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या है सबसे पहले लॉ? ये स्कूल में पढ़ा है. Angle of of incidence incidence. is equal to angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लॉ क्या है इसका, जल्दी बोलो. The incident ray, reflected and normal all lie on the same plane. Reflected ray and the normal are in same plane. Hello. Yes, sir. So point of incident and points of reflection is on the same plane, right? The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. Point कहाँ बात कर रहे हो? Point की बात नहीं करना. They all lie in one plane. इसका मतलब क्या होता है कि सपोज ये आपका एक्स वाई प्लेन है. हेलो. Yes, sir. हेलो. Yes. Yes, यहाँ sir. पर सपोज एक रे आ रही है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन. ऑल शुड लाई इन एक्स वाई प्लेन ओनली. हेलो. Yes, sir. मतलब अगर आप साइड व्यू से देखेंगे ना तो सब एक लाइन में, मतलब यहाँ पर आंख लगा दूं मैं ऐसे और मैं इसको देखूं तो ये एक ही लाइन में दिखेगा मेरे को. हेलो. Yes, sir. गॉट इट? मैथमेटिकली इफ यू स्पीक द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी जीरो. हेलो. Yes, sir. इन तीनों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बिकम इक्वल टू जीरो. वो जनरली आता नहीं है बट ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ओके, दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ थ्री वेक्टर्स. ओके, दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स. हेलो. Yes, sir. कोप्लेनर वेक्टर्स है तो द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बिकम इक्वल टू व्हाट सर? Zero. जीरो. अरे बोलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये चीज है. ठीक है. अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट और उसके बारे में तो मैंने बता दिया, फिर से हम लोग देख लेते हैं. थोड़ा बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस. Look carefully. Suppose this is a mirror. ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल है कि वर्चुअल है? Zero. Real. ये ऐसे जाएगा, अभी सिखाया ना भाई, ये तो ऐसे सिखाया. And they will form what पीछे? Virtual image. वर्चुअल इमेज. और एक चीज याद रखना, ये जितना डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस ये भी रहेगा फ्रॉम द मिरर. हेलो. Yes, sir. मतलब अगर ये d सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर रहेगा बेटा? D centimeter. d सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. गॉट इट? Yes, sir. ओके. एंड सेकंड हेलो, आवाज आ रही है ना? सपोज ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का भी साइज यही रहेगा. Yes, sir. ये ध्यान रखना बेटा ये चीज का. क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एंड दिस विल बी सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. इसका रे डायग्राम अगर मैं बनाने जाऊँ तो ये कैसे आएगा? और इसका तो स्ट्रेट ही जाएगा ना ये. Yes, sir. It is of the same size. So next point,
We shall be discussing first extra points, याद रखना. Amir, can you go back? Yes, sir, done. Extra points. Can I say V is minus of U? Yes. Sir? जितना इमेज डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो दूसरी तरफ है ना. Yes, sir. हेलो. Or you can say the magnitude of V and magnitude of U is the same. बोलो भाई. इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखो इधर. सपोज there is a mirror given. ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज कहां पर बनेगा? हेलो, इमेज कहां पर बनेगा? कैन आई कॉल दिस, ये डिस्टेंस को कितना पकड़ेंगे बेटा? डी. हेलो हेलो, ये इमेज भी कितना डिस्टेंस पर आएगा? कितने डिस्टेंस पर आएगा? D. डी. इज इट करेक्ट? नहीं सर, perpendicular distance should be same. हाँ, ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है वीडियो में. ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते. दिस इज रॉन्ग. हेलो, Yes, sir. इट शुड बी विच डिस्टेंस? Perpendicular. सपोज ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस x होगा and the image will be here. बाबा समझ आ रहा है क्या? It should Yes, be sir. which distance? Perpendicular distance. This is wrong, this is correct. अरे बाबा समझा क्या? स्ट्रेट Yes, लाइन sir. नहीं बना देने का हमेशा. This mistakes are done in the examination. ध्यान रखो इस चीज का प्लीज. सपोज मैं आपसे कहूं कि मिरर ऐसे है, and there is an object this way, AB object है, और it is at a distance of, जो भी डिस्टेंस है, इसका इमेज बनाओ. इसका इमेज कैसे बनेगा? कैन आई से सपोज ये डिस्टेंस है x, सो इतने ही x डिस्टेंस पर a डैश बनेगा. Yes, sir. और सपोज दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज y, सो उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या बनेगा बेटा? B dash. b डैश बनेगा. हेलो, सो दिस विल बी व्हाट? द Image. image. हेलो, Yes. yes or no? ये ध्यान रखना है बेटा इस चीज का. दिस इज द बेस्ट मेथड टू ड्रॉ रे डायग्राम. रे डायग्राम का इमेज बनाना. इट विल ऑलवेज बी लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या? ओके, देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे बना रहा है एंगल थीटा, तो इसका इमेज भी कितना एंगल बनाएगा? Theta, but in opposite इन direction. दी ऑपोजिट डायरेक्शन में. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड. क्या बोलते हैं बेटा इसको? लैटरली Inverted. इन्वर्टेड. ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है ना भाई? Yes, sir. नेक्स्ट, now I'll discuss something called as field of view. क्या बोलते हैं इसको? Field of. फील्ड ऑफ व्यू. सपोज मिरर है, इतना सी मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, आपके घर में कोई फर्नीचर रखा है इधर, तो मैं कहूँ इसका इमेज कहां पर बनेगा? उसके सामने, ऑब्जेक्ट के सामने. ऑब्जेक्ट के सामने ही बन सकता है. मिरर तो मेरे पास इतना ही है. सपोज इतना बड़ा मिरर होता तो मैं कहता कि अगर ये डिस्टेंस d है
ये डिस्टेंस d पर क्या बनेगा? Image. इमेज बनेगा। हेलो, Yes, sir. अब ट्रिक ये है, जब भी आपको फील्ड ऑफ व्यू पहचानना रहता है, जब भी आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, आप दो एंड्स ऑफ द मिरर से रेस पास करो फ्रॉम द इमेज. यू पास टू रेज getting it Yes, sir. from the two ends of the mirror. Hello, Yes, sir. this region which is there, this region is the field of view. मतलब क्या आपकी आंखें Should be in this region to see the image. इधर होना चाहिए, ये रीजन, to see the image. हेलो, समझ Yes, में आ रहा है? इस फील्ड को क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड ऑफ view. पूरे घर का इमेज हमारे मिरर में बनता है, अगर उससे रेस पड़ेगी ना, हेलो, Yes, अगर उससे रेस पड़ेगी मिरर के ऊपर तो उसका इमेज मिरर में बनना ही चाहिए, बट आपको फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होना है ताकि आपको इमेज दिखे या ना दिखे. अंडरस्टैंड? इसका री डायग्राम कैसे आएगा मैं थोड़ा बता देता हूँ. इसका री डायग्राम ऐसे है, एक रे ऐसे जाएगा, ये ऐसे मुड़ गया, और दूसरा रे ऐसे जाएगा जो ऐसे मुड़ गया. गेटिंग ना? हेलो, yes, sir. देखो ना, ये नॉर्मल है. You getting it? What's happening, man? Yes, sir. This will be pulled backwards and we'll see the image and this will be the field of view. और आपकी आंखें फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होना चाहिए, वरना आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाए, वो ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाए नहीं देगा. नहीं हाँ भाई, देगा. यस. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, इफ मिरर rotates by theta, if the mirror rotates by Theta. theta, then reflected ray, Total by 2 theta. 2 ये theta. इंपॉर्टेंट है, reflected ray rotates by, Two प्रूफ theta. मैंने किया है वीडियो में, rotates by what sir? 2 theta. In the Same direction. same direction. समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने वीडियो देखा, इसमें प्रूफ किया था ना मैंने? Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ सबका किया है मैंने अंदर. ओके, यहाँ पर थोड़ा सी देख लो, मैं आपको सिर्फ जस्ट बता देता हूँ. वीडियो तो कॉन्सेप्चुअल आपको देखना पड़ेगा, उसके बिना काम होने वाला नहीं है. तो ये अगर एक नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. बराबर है क्या? Yes, sir. कैन आई से दिस इज द विच रे, Incident दिस इज विच रे? reflected. मिरर को सपोज मैंने थीटा डिग्री घुमा दिया. हेलो, Yes, sir. मिरर को मैंने थीटा डिग्री घुमा दिया ऐसे, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. ये क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, क्या है बाबा? हेलो, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. तो कंडीशन क्या बोलता है? रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय Angle 2 theta. 2 थीटा. मतलब रिफ्लेक्टेड रे अभी फिलहाल इधर आ जाएगा, Yes. एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गया इन द सेम डायरेक्शन? -2 theta. 2 थीटा घूम गया. गेटिंग इट? Yes. हेलो, Yes, sir. Yes, can sir. anyone tell me what is the angle of incidence with the angle of reflection with the original normal? पहले अभी नॉर्मल भी चेंज हो गया बाबा. हेलो, Yes, sir. ये इनिशियल नॉर्मल है ना भाई, ये नॉर्मल 1 है, नॉर्मल 2 तो चेंज हो चुका है, आपको पता ही रहेगा. हेलो Yes, यार, yes. क्या बात कर रही है? नॉर्मल 2 आ गया.
सो नॉर्मल 1 के साथ कितना एंगल बना रहा है अभी है I minus 2 theta. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये प्रूफ आपको देखना पड़ेगा. आप याद कर लो, नीट वाले तो याद ही कर लो, प्रूफ का जरूरत नहीं है. जेई वाले थोड़ा प्रूफ के बारे में ध्यान रखना, बिकॉज एडवांस के अंदर कोई भी समय है किस डायरेक्शन में कुछ भी घुमा दिया तो आप अगर रिजल्ट याद करके जाएंगे तो काम होने वाला नहीं है. हेलो, Yes. हाँ, नीट वाले सीधा याद कर लो, कोई इश्यू नहीं है. इफ द मिरर रोटेट्स बाय थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन. हेलो, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट. Next one, the minimum length of the mirror. Hello, Yes, sir. Yes, sir. to see one's full height. Okay, suppose उसका height h है, तो minimum length of the mirror कितना होना चाहिए? H by 2. By 2. Should be h by 2. ये important है यहाँ पर से. मतलब आपको पूरा अपने आप को देखना है from top to bottom, from your head to toe, पूरा. Okay, one piece में. Understand? Yes, तो sir. क्या करेंगे? Minimum length of the mirror कितना होना चाहिए? H by 2. मगर जरूरी नहीं है कि अपने आप को आप देख पाएंगे. आपकी आंखें पूरी फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होना चाहिए. हेलो, Yes. कंडीशन आगे समझ आएंगे. ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है. द प्लेसमेंट ऑफ द मिरर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपने मिरर किधर ऊपर नीचे लगा दिया तो आपके शूज का फील्ड ऑफ व्यू नहीं है उसके अंदर. आपकी आंखें जो है वो शूज के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, तो आपके शूज आपको दिखाए नहीं देगा. देंगे. हेलो, आई ऑल गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. इसका सम आने वाला है. इफ यू वांट टू सी द वीडियो, आप लोग ये इसका प्रूफ मैंने दिया है ना वीडियो के अंदर. हेलो, Yes, Yes, sir. Yeah. sir. प्रूफ वीडियो के अंदर दिया है. आप लोग प्रूफ लिख कर याद कर लेना. नीट वालों को याद रखना है, ये चीज याद कर लो सीधा. कोई ये ऑप्शन, कोई टेंशन नहीं है. करेंगे ना? Yes, sir. नेक्स्ट, द होल बॉडी शुड बी, sorry, the eyes should be where? In the In field the of. In the field of field view. of view of the whole body. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मालूम पड़ा कि जो पैर से रेज आ रही है वो आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है. आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है तो काम नहीं चलेगा भाई, तो काम नहीं चलेगा. करेंगे ना? Yes, sir. सही है. Yes. इसका सम आएगा, ऑब्जेक्टिव में एक सम है. नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मैंने शायद डिस्कस किया है. A person is standing midway between the wall and the, क्या भाई? mirror. Mirror. He wants to see the full wall of height h. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए? H by 3. H by 3. वीडियो देखो, वीडियो देखो. अंडरस्टैंड, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी कितना? H by 3. By 3. h by 3. ओके, ज्यादा देखेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है? Did you noted? Did you all note this thing? Yes. Yes, sir. चलो आगे. नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी.
ध्यान दो इधर इधर बेटा, मिरर है। सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है विद वेलोसिटी vo, तो इमेज कैसे चलेगा? वेलोसिटी vi. हेलो, कैन आई से vo is minus vi? What does minus sign indicate? Opposite direction. Velocity का object is minus of velocity of image. बोलो भाई. Yes, sir. But this is when they are traveling. बोलो बाबा. Perpendicular. Perpendicular to mirror. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Next point. वो ऑब्जेक्ट है vo vi. Can I say vo is equal to vi? Yes, sir. इधर माइनस माइनस कुछ नहीं. When they are traveling parallel to mirror. बोलो. VO is equal to. सही है ना? Yes, sir. थर्ड, सपोज ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो इमेज कैसे जाएगा? Same. हेलो, Opposite direction. कैन आई डू वन थिंग, इसके दो टुकड़े कर दूं मैं. Yes, sir. ये सपोज थीटा है तो ये हो जाएगा vo और ये हो जाएगा. VO sin. अब ये इमेज की अगर मैं बात करूं तो vo cos थीटा तो vo cos थीटा ही रहने वाला है. Yes, sir. हेलो, व्हाट अबाउट Yes, vo sir. sin थीटा? अगर वो Minus दूर जा रहा VI है, sin theta. हाँ ये vo sin थीटा हो जाएगा ना बेटा, Yes, sir. उल्टे डायरेक्शन. दैट मीन्स अगर इसका रिजल्टेंट बनाने जाओ तो ये ऐसे बनेगा. हेलो, Yes, एंड sir. दिस एंगल विल बी Yes. थीटा ओनली. इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सपोज थीटा बना रहा था, ये तो इमेज भी कितना बनाएगा? थीटा, बट इन Theta. ऑपोजिट डायरेक्शन. Opposite direction. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड यार क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. ये बेसिक चीजें हैं जो हमको सीखना है. मैं एकदम स्लो जाऊंगा. बट आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड सम लॉट ऑफ सम्स आल्सो इनसाइड. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं कुछ सम्स जो अनसॉल्व्ड है ना इंट्रोडक्टरी वाले वो सॉल्व करूंगा. अभी मेरे पास आज वो शीट नहीं है तो हम लोग क्वेश्चंस लिख लेते हैं. हेलो Yes, sir. बेटा, सही है ना? Yes, sir. आई एम डूइंग इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज. क्वेश्चंस यस और नो? Yes, sir. इट इज फ्रॉम 3.1. सही है ना बाबा? बाकी के सॉल्व सम्स मैंने पूरे सॉल्व किए हैं उसके अंदर, अगर आपको देखना है. ओके, आप लोगों ने देखा है क्या? Yes, sir. चलो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज. पहला वाला क्वेश्चन तो एकदम आसान है. कह रहा है कि देयर इज अ प्लेन मिरर and there is a man which approaches the plane mirror with a speed of 2 meter per second. क्या दिया है? vo बराबर है. Yes, sir. At what rate does he approach the image? हाँ भाई, at what rate does he approach his image? Yes, image कितना नजदीक आ रहा है उससे? 2 meters per second in opposite direction. यही तो होने वाला है. Sir, we use relative velocity करके 4 meters per second. एक मिनट, सही है, बात सही है आपकी. पहले ये तो सीख लेते. हेलो, Yes, sir. तो अगर एक ऑब्जेक्ट 2 से जा रहा है, इमेज 2 से जा रहा है, तो एट व्हाट रेट ही इज अप्रोचिंग द इमेज? 4 meters per second. 4 मीटर पर सेकेंड ना. हेलो, Yes, sir.
he approaches his image at how much? 2 4 plus meter 2, per second. 4 meter per second. Hello? Yes or no? Yes, sir. सही है. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मजेदार क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग इधर ध्यान देंगे. I go to the next page only so that we get free hand. कह रहा है an object M is placed at a distance of 3 meter from the mirror. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है मिरर से? 3 meter. 3 मीटर फ्रॉम द मिरर. नेक्स्ट टाइम गेट प्रिंटेड होंगी. इसमें तो मजा आता नहीं है इधर. ठीक है. विद द लोअर एंड 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर. तो फिगर दिया हुआ है. अच्छा ठीक है ना, फिगर बना ही लेता हूँ. ठीक है. ये मिरर है, 2 मीटर लेंथ का मिरर है. और कह रहा है ये जो है ये भी कितना मीटर है बेटा? 2 मीटर. 2 meter. सही है. Yes, sir. There is a person at a distance of 4 meter from the object. So distance of 4 meter from the object, there is a person standing here. Who is there? Person. Person. सही है. Yes, sir. Find the minimum and the maximum height of the person so that he is able to see the object. He is able to see the Object. अच्छा इसका ट्रिक ये है. ये एक्चुअली एक जेई का क्वेश्चन है. नीट के अंदर तो संभावना ही नहीं है ये आ जाए, बट इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकते हैं. इज एवरीवन देयर विद मी? Yes, sir. 2-4 नहीं करना है, ज्यादा तो करना नहीं है. बाकी वीडियो के अंदर भी बहुत सारी चीज है. आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट का, राजवीर बताइए बेटा. राजवीर ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनने वाला है सबसे पहले? यार बोलो इमेज कहां पर बनेगा? राजवीर नॉट देयर. वंश बताओ. Behind the mirror 3 meters. कहना इसे 3 मीटर यहां पर बनेगा. हेलो बोलो. Yes, sir. क्वेश्चन में है कि ये जो पर्सन खड़ा है उसको दिखेगा कि नहीं. अच्छा दिखने के लिए कंडीशन क्या है कि उसकी आंखें किधर होना चाहिए? In the field of In the field of view. इन द फील्ड ऑफ व्यू. ओके. तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है कि अगर मैं इधर से रेज, हाँ एक्सट्रीम रेज पास करूँ ना बेटा इधर से. Yes, sir. Yes, sir. यार बोलते नहीं हो आप लोग यार. Yes, sir. और दूसरा वाला कहाँ रहेगा? ऊपर. शायद ये डायग्राम किया है हम लोग ने. Yes, sir. वीडियो में किया है क्या? Yes. Yes, sir. अब इसके आगे जाने वाला नहीं है अभी. बराबर है क्या? Yes, sir. ये क्या है हमारा? Field of Field of view. अब क्या पूछ रहा है? ये जो पर्सन है उसका मिनिमम हाइट मांगता है. और क्या चाहिए? maximum height. Max. मिनिमम हाइट मतलब Lower मिनिमम range. हाइट इतना होना चाहिए. तो यार मुझे ये ना इंसान बनाने आता नहीं है ये. अंडरस्टैंड? Yes, sir. दिस शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द पर्सन. Yes. यार. Yes, Yes, sir. sir. ताकि ये जो रेज है उसकी आंखों तक पहुंच जाए ना यार. Yeah. Yes, sir. ठीक है. और मैक्सिमम हाइट के लिए कहाँ होना चाहिए? Upper range. Above. इधर होना चाहिए. इधर. ये इधर तो बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा. ये इधर होना चाहिए ना. बराबर है क्या? Yes. Yes. अभी एक काम करते हैं. एक मिनट ना, किसका डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा? म्यूट करो. हाँ. ठीक है. अच्छा एक काम करो, मिनिमम हाइट की बात करते हैं. मिनिमम हाइट के लिए क्या ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. अरे आई, ये नाम दे देते हैं ना. चलो ए बी आई जे, चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, नाम sir. दो. ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? चलो सूजल बेटा क्या है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं. Yes, sir. ये इसको बोलेंगे एच मिनिमम. Minimum. कैन आई से एच मिनिमम बाय बेस कितना है ट्राइंगल का? 10. 4 5 6 7 8 9 10 will become equal to 2/3. 2/3.
अरे मेरा बच्चा, ये एंगल सेम है ना दोनों का? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना होगा? 220 हो जाएगा 20/3। यस और नो? Yes. Yes, sir. ये 20/3 है, 2 ये हो जाएगा, करेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही एच मैक्सिमम भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से अगर मैं एक लाइन बनाऊँ इधर, ये, चलो बोलो, एच मैक्सिमम अपॉन 10 is equal 10 to is 4 by equal to 3. 4/3. विल बिकम 4/3। ये कितना हो गया एच मैक्सिमम? 40 by 3. 40/3. अच्छा मेरी बात सुनो, अगर एच मिनिमम से कम होगा तो भी नहीं दिखेगा, और एच मैक्सिमम से ऊपर होगा तो उसके हाथ से ऊपर पहुंच जाएगी, तो भी रेस पहुंचेगी नहीं। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes, Yes, sir. Sir. So it is important. This question is important and a good level JE question. Did you all understand बेटा क्या हो रहा है? yes, sir. Next question. 2 more questions. And then फिर टेंशन नहीं है, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, इधर देखो। ओके, ये क्या बोल रहा है? ये एंगल थीटा है। दो मिरर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही है हमेशा। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे भी रहेंगे ना वीडियो में, हाँ दो सर। मिरर वाले, 2 मिरर वाले। ओके, कह रहा है ये in terms of theta, find the value of I so that light retraces its own path. तो कह रहा है कि क्या आया ऐसे, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये आए है ना, पता है ना सबको? तो Yes, एंगल sir. ऑफ इंसिडेंस। Yes, sir. फिर कह रहा है ये भी जाएगा आई से, ये भी आ रहेगा। फिर कह रहा है यहाँ से ऑल्सो इट फॉल्स दिस ऑन द मिरर। क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलो यार, ज्योमेट्री एक्सपर्ट। ओके, मुझे आप एक बात बताओ कि रिट्रेस करने के लिए लाइट शुड फॉल परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। Yes, sir. अरे कॉन्सेप्ट याद है ना? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. हाँ, तो कैन आई से ये एंगल कितना है? 90 है। 90. 90. 90. एंड ओनली इट विल रिट्रेस ना। सबसे आखिर वाली रे को देखो, ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, ये थर्ड रे। आई एम लुकिंग एट द थर्ड नंबर का रे। थर्ड नंबर का रे ऐसे जाएगी, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सेकंड नंबर के रे के बारे में क्या ख्याल है? ये भी 90 है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? इसको भी रिट्रेस मारना है। हेलो? Yes, sir. And then it will go this way Yes, sir. and fall on the mirror. So, but if the second ray is 90, then how is the third ray being formed? It is retracing its own path, no? Second ray, if it goes on mirror M1, see na? So, but it will reflect back, right? The third ray won't be formed. No. While going, see, हाँ, ये भी बात सही है। Sir, it should be parallel to original हाँ, path. it should be only parallel। एक मिनट, ठीक है? यहाँ पर फिर से बात करते हैं, only the third ray should be perpendicular, और कुछ नहीं। हेलो? Yes, sir. ये थीटा है, ये ऐसे जा रहा है, ये कितना है? कितना है बेटा? आए, ये भी जाएगा कितने से? I. आई से जाएगा। दिस रे गोज दिस वे। अच्छा, ये तो मालूम है ना कि इट शुड फॉल परपेंडिकुलर ओवर हियर, ये तो परपेंडिकुलर होगा तो ही तो रिट्रेस मारेगा ना वो।
Yes, sir. Yes. हेलो, Yes, sir. अब मुझे आप एक बात बताओ, मुझे चाहिए आई इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? Theta. थीटा. आई इन टर्म्स ऑफ थीटा. ओके. ये 90 है, ये कितना रहेगा? 90 minus theta. Theta. बोलो, सही है? अभी 90 मिलना minus- शुरू 90 minus. Yes, sir. 90 माइनस थीटा. तो इसका नॉर्मल अगर मैं बनाऊं, नॉर्मल तो 90 बनाएगा ना, इतना तो पक्का है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये एंगल कितना रहेगा? Theta. Theta. थीटा. तो ये भी That थीटा. was the theta. Yes, sir. हेलो बाबा बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया थीटा. ये पूरा, अच्छा ये भी 90 है. 90, yes, sir. Whole thing is 2 theta. 90 ये minus कितना 2 हो जाएगा? theta. ये कितना हो जाएगा? 90 minus 2. ये आई कितना हो जाएगा? 2 थीटा. 2 theta. सही है ना बाबा? Yes, sir. Yes, sir. डन. सो आई शुड बिकम इक्वल टू, 2 theta. हेलो, Yes, Yes, sir. sir. खाली नॉर्मल का खेल है, थोड़ा बराबर से करो, आपको समझ में आ जाएगा. चलो 2 और क्वेश्चंस आई विल डू एंड देन ओके, खत्म. गॉट इट ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बाबा देखते हैं. एक क्वेश्चन है which is in the solved examples. Are the need people also understanding? बेटा थोड़ा अच्छा लेवल में सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. हेलो एवरीवन. Yes, sir. हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें, बिकॉज ये आगे जाके छोटे सम्स में बदल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन which I am discussing is, ये मिरर है, कह रहा है ये 30 डिग्री है. ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे गिर रहा है. हेलो, Yes. Yes, sir. कह रहा है इमेज कहाँ जाएगा? हेलो मेरी बात सुनो, अब एकदम आसान तरीका है. ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करो, बिकॉज एंगल मांगता है ना. आपको पता है ना कि मिरर के साथ जितना एंगल बनाता है इमेज, उतना ऑपोजिट एंगल बनाता है. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अगर मैं नीचे खींच लूं, क्या इसे ये 10 बनाएगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? 60. 60. 60. इन विच डायरेक्शन? क्लॉक एंटी क्लॉक? Anti-clock. अरे बाबा बोलो. Anti-clock. तो इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा 60. Yes, sir. इमेज जो जाएगा बेटा, इमेज ऐसे जाएगा ना. हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या हो रहा है यार? इतना क्या टेंशन ले रहे हो भाई? Yes, ऐसा नो sir. ना. ये Yes, sir. 10 meters. दिस इज इमेज. विच कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग पता है ना आपको? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, अब आपको बोलेगा भाई इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. तो आई कैप जे कैप अगर मैं इस डायरेक्शन में लूं, आई और जे, तो ये डायरेक्शन, ये एंगल मुझे मांगता है ना, ये स्ट्रेट वाले के साथ. Yes, sir. Yes, बेटा sir. अगर ये 60 है तो कोई बता सकता है ये एंगल कितना है? ये 30 30 है ना? degrees. 30. ये भी 30 है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इमेज का? ये जो एक्स कंपोनेंट है वो कौन सा हो जाएगा? Cos 30. और वाई कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? Sin 30. Sin 30. So can I say velocity of the image is minus 10 cos 30 I cap plus 10 sin 30 j cap? Yes, sir. Yes, sir. What Yes, sir. nonsense are you doing, sir? कुछ भी करते रहते हो आप. अरे बोलो यार, समझ आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. cos 30 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 5 √3 I cap plus 5 j cap. Yes, sir.
Yes, sir. ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस है which are given. यार बोलते नहीं हो आप लोग, समझ में आ रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन मुझे सिखाना है आपको, सही है? Yes, sir. आहिस्ता आहिस्ता, चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट मुझे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंप्लीट करना है बराबर से। अच्छा, आप लोग का इलास्टिसिटी भी अच्छा चल रहा है ना यार? Yes, हेलो, sir. हाँ भाई, एवरीवन, नीड पीपल, नीड स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी बेटा कैसे चल रहा है? एनीवन रिप्लाई मैन? नहीं, कुछ नहीं। Going good. ओके, गुड। ओहो, ठीक है, चलो इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 मिरर है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हेलो, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। फिर कल शाम में हम लोग क्या करेंगे? स्पेरिकल मिरर्स। आज हमने क्या क्या खत्म कर लिया? Plain. Plain mirror. प्लेन मिरर्स। कल हम लोग करेंगे स्पेरिकल मिरर्स, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ सम्स भी हम लोग कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सम्स करेंगे, और फिर आपका रिफ्लेक्शन ये हफ्ता खत्म खत्म। हो जाए। नेक्स्ट वीक आराम से रिफ्रैक्शन, आराम से, एंड देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो वैसे ही कोई दम नहीं है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट जा रहा है V से, सही है क्या? 2 Yes, मिरर है sir. ना बेटा, M1 एंड M2। अच्छा वंश बेटा, यू विल टेल मी, 2 मिरर है तो Yes, sir. दोनों में इसका इमेज दिखाई देगा? Yes, sir. दिखाई Yes. देगा कि नहीं दिखाई देगा यार? दिखाई दिखाई देगा देगा। ना? Yes. दिखाई Sir. देगा। सपोज M2 की बात करते हैं, सबसे पहले M2 की अलग बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ दिखेगा? ये सपोज V से जा रहा है, Same height और below the mirror, V moving with same same velocity in same direction. हाँ सेम डायरेक्शन, पैरेलल टू मिरर है। सबको समझा क्या? हेलो, Yes. Sir. ये बोलेगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर M2, सही है क्या? Yes. वेरी गुड सर, ये सब आप इतना इजी इजी बता रहे हो। इजी नहीं है भाई, अब क्वेश्चन पता नहीं चला है आपको, ठीक है? वेट, मिरर M1 है, कहना इसे ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। अच्छा, ये एंगल मालूम है ना, थीटा है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कहना इसे ये ऑब्जेक्ट है, क्या करना पड़ेगा? इसको आगे खींच लो, Yes, sir. क्योंकि एंगल बना रहा है ना वो, तो एंगल का तो प्रॉब्लम आएगा ही। कहना इसे, इसको अगर मैं आगे खींचूं, कहना इसे ये ऐसे बना रहा है। Yes, sir. ठीक है, ऑब्जेक्ट ही है हाँ बाबा, आगे खींच लिया खाली मैंने ऑब्जेक्ट को। Yes, sir. कितना एंगल बना रहा है ये Theta. मिरर के साथ? थीटा, सही क्या? Yes, sir. तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? सुजल, सुजल, हाँ बोलो, सुजल बोलो, कहाँ बनेगा इसका इमेज? हाँ, इस डायरेक्शन में बनेगा ना बेटा। Yes. कितना एंगल बनाएगा ये भी? Theta. In opposite direction. सही है क्या? Yes, sir. सही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट? इमेज ऑफ Image Mirror one. of M1। सही 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 बोलो। Yes, sir. अब पूछा ये सब नहीं है, IIT का क्वेश्चन है ये भी। अरे आपको मजा आ रहा है क्या? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. they are asking you, you know what, they are asking you velocity of image of mirror M1 with respect to mirror M2। हेलो, Yes, sir. Yes. mirror M1 with respect to Mirror M. mirror M2। hmm. अच्छा, can you tell me velocity of image mirror M1 with respect to mirror M2 को मैं लिख सकता हूँ V image mirror M1 minus V image mirror M2 आता है ना? Yes, sir.
अरे यार वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आता है कि नहीं आता है? वी ए माइनस A बी बी। minus हेलो VB. यार, Yes, 11 sir. स्टैंडर्ड फिर से ज्वाइन करो, वरना क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. मतलब किसको किससे माइनस करना है? A minus. वेलोसिटी इन इमेज m1 को वेलोसिटी इन मेरेज m2 से Minus. Minus. माइनस करना है। अच्छा, ट्राइंगल लॉ अगर मैं बनाऊं, सुनो मेरी बात या पैरेललोग्राम लॉ अगर मैं बनाऊं, तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इन इमेज m1 तो यही है, ये है ना? Yes, sir. कितना एंगल बना रहा है ये? Theta. थीटा बना रहा है ना, इसका v है ना, बराबर है क्या ये? Yes. हेलो हेलो, सही सही Yes, sir. सही, ओके। आई नीड वेलोसिटी ऑफ इमेज m2 बट माइनस करना है, उसको माइनस करना है, मतलब इस डायरेक्शन को मैं उल्टा कर दूं। Yes, Yes, sir. sir. दिस इज माइनस वी आई ना, m2। Hmm. पता है क्या, 11 स्टैंडर्ड में सिखाया था मैंने स्केलर वेक्टर्स में नेगेटिव वेक्टर। हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो इसको आप लोग इधर इधर रख दो, बराबर है क्या? Yes, sir. व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस वी आई, बराबर। Yes, इसका भी sir. मैग्नीट्यूड वी है, माइनस वी आई लिखता नहीं हूं मैं यहाँ पर, चलेगा क्या? Yes, sir. कैन आई से इन दोनों का रिजल्टेंट will be this answer? Yes, sir. हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है क्या? Yeah. अब कैन यू टेल मी, ये भी ठीक है। कोई बता सकता है ये एंगल कितना रहेगा? 180 minus 2 theta. अरे 90 माइनस थीटा है यार, ये ऊपर वाला थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, वंश sir. क्या बात कर Yes, रहे sir. हो? हेलो, Yes, sir. सही है क्या? Yes, sir. हम्म, अब आई एम यूजिंग द रूल ऑफ एडिशन, तो v resultant will be under root of v1 square plus v2 square plus 2v1 v2 cos थीटा। Yes, sir. ये एडिशन है ना, पैरेललोग्राम लॉ का एडिशन लॉ है। हाँ भाई, Yes. सब्ट्रैक्शन लॉ मत लगाना, एडिशन कर रहा हूं मैं। तो ये रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ, बोलो बोलो फटाफट, अंडर रूट ऑफ व्हाट? V square. स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2vv vv cos ऑफ 90 माइनस थीटा। Sin theta. क्या होता है यार, बोलो जल्दी। Oh, कैन आई से 2v स्क्वायर 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। Sin theta. Yes, sir. व्हाट इज 1 प्लस sin थीटा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। Yes, sir. Yes, sir. तो v रिजल्टेंट विल बिकम, कितना हो जाएगा? 2v, क्या हो गया? 1 प्लस Sin. sin 1 प्लस sin थीटा कितना होता है? 1 प्लस sin थीटा क्या होता है? कितना होता है बाबा, कितना होता है बोलो? वन प्लस साइन थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, ये है क्या फॉर्मूला? हेलो 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 हेलो, यस और नो? व्हाट हैज हैपेंड? हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है आप लोग को? अरे टेल मी, आई कांट हियर यू ऑल, दैट्स व्हाई। Yes, sir. So what will be the resultant answer? ये रूट के अंदर है ना, will become 2v sin theta by 2. Did you understand? Hello, Yes, sir.
ओके ठीक है, सही है। Yes, sir. चलो बाबा, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? ये थीटा थीटा हमने कर लिया बराबर, ये माइनस भी ठीक है। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। ओके बाय।